This morning the choir sang very good, and we are so happy about how they are serving the Lord by using God-given talent. और इस सुबह में जो खोया टीम है बहुत ही अच्छे गीत गाया और बहुत ही धन्यवाद कि उन लोग परमेश्वर की महिमा के लिए गा रहे हैं. And I hope and I pray that they will continue to do great things for the Lord Jesus और मैं Christ. प्रार्थना करता हूँ और मेरी आशा ये होगा कि उन लोग तक ये लगातार परमेश्वर की महिमा करते रहे. Let's turn our Bible to the book of Galatians today. अच्छा, हम अपने बाइबल को खोलेंगे गलातियंस में. Galatians chapter 6. गलातियों का पुस्तक चैप्टर 6. Am I in the middle? Galatians chapter 6, we are going to see from verse number 7 through 10. हम गलातियन 6 हम चैप्टर 6 हम 7 से लेकर हम देखेंगे आज. If you have been sleeping, you can wake up now. अगर आप सो रहे थे तो आप इस समय आपको जगना चाहिए. So look at your neighbor and say, wake up, wake up. कि पड़ोसी को देखकर कहो कि जागो जागो. We're going to hear the word of God. इस समय हम परमेश्वर के वचन को हम सुनने जा रहे हैं. Put your hands on the shoulder of your neighbor and shake them a little bit. और आपके पड़ोसी को शोल्डर में आप रख के आप उन लोगों को जगाओ. I know you had to wake up at 4 a.m. in the morning मुझे to मालूम come है here. आपको 4 बजे को सुबह को उठना होता है यहाँ पे आने के लिए. And God will definitely bless you and reward you for your dedication and commitment. और उसके लिए जरूर परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष करेगा. Hallelujah. हालेलुया. I have to wake up 4 o'clock. My whole family wakes up around that time. मुझे सुबह को 4 बजे उठना होता है मेरे परिवार के लिए. Actually, today I woke up at 1:30. आज मैं 1:30 बजे को उठा. I went to sleep at 10:30. मैं 10:30 बजे को सोने के लिए गया. And then I thought it's 4 o'clock and I woke up at 1:30. और मैंने सोचा कि 4 बज गया तो मैं देखा कि 1:30 बजा हुआ है. And when I woke up at 1:30, my sleep was completely done. जब मैं 1:30 बजे को उठा तो मेरा जो नींद था वो पूरी हो चुका It था. almost looked like I woke up at 9 o'clock in the morning. और ऐसा लगा कि मैं 9 बजे सुबह को उठा. And so I was fresh. और मैं बहुत ही फ्रेश था. And then I went and saw the clock, it's 1:30. और मैंने घर ही जाकर देखा कि ये 1:30 बजा है अभी भी. I made a cup of tea and drank and then prayed a little bit and went to sleep again. और मैंने चाय बनाया और प्रार्थना किया और वापस से मैंने सोने के लिए गया. And then I could not sleep. और मैं सो नहीं पाया. And I just laid just like that until 4 o'clock in the morning. और मैं बस ऐसे ही बिस्तर में पड़ा रहा बस सुबह तक. So I hope and I pray that the Lord will grant you good health because of your faithfulness. और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके फेथफुल की वजह से परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष देगा. As a Christian, as a child of God, there are many blessings when you invest in the kingdom of God. एक मसीह होने के नाते बहुत ही ऐसे आशीष है जहाँ हम परमेश्वर की राज्य के लिए जहाँ अपने जीवन को हम व्यतीत करते हैं. Remember one thing, whatsoever you do is never going to be wasted. आपको एक बात याद करना चाहिए, जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं वो सब खाली नहीं जाएंगे, व्यर्थ नहीं जाएंगे. You see, when you take Christian life for granted, then there can be a problem. जब आप मसीह जीवन को साधारण से लेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही समस्या आ सकती है. But when you take Christian life seriously, there is no problem, there is a blessing. लेकिन जब आप अपने मसीह जीवन को बहुत ही सीरियस लेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही आशीष आएंगे. Whatever you do will have an equal reaction because of your actions. जो कुछ भी आप करते हैं परमेश्वर के लिए, आप परमेश्वर के द्वारा आपको बहुत ही आशीष मिल सकती है. You know, in science we study action has an equal reaction. जैसे हम विज्ञान में देखते हैं जो इक्वल होता है उसका एक एक्शन भी होता है, उसका रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है. And in the Bible also we study what you sow you shall reap. और बाइबल में भी हम पढ़ते हैं जो कुछ भी आप बोते हैं वही आप काटेंगे. And so today we are going to study about the sowing and reaping principles of in the Bible. तो आज हम क्या देखेंगे, बाइबल में से हम देखेंगे काटने के बारे में और बोने के बारे में. Whatever it might be in your life, when you sow certain thing, you shall definitely reap. जो कुछ भी शायद आपके जीवन में जो कुछ भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे. And this is a universal principle written in the Bible. और ये पूरे विश्व का एक प्रिंसिपल है जो बाइबल में लिखा गया है. Simple. If you study for your exam, you will do well in your exam. बहुत ही साधारण, जैसे आप अगर आप एग्जाम में आप अच्छा से स्टडी करेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे. If you don't study and you just keep on praying, you will not do well. अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, केवल प्रार्थना ही करेंगे तो आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे. You may be working whole day
when you go to work. शायद आप जब काम करने लगते हैं शायद पूरा दिन काम करते हैं, But if you don't save, there will be no saving in the future. लेकिन अगर आप सेव करके नहीं रखेंगे आप भविष्य में भी कुछ सेव नहीं कर पाएंगे. But if you save and invest little bit every week and every month, लेकिन अगर आप सेव करके रहेंगे और हर हफ्ते में आप इन्वेस्ट करेंगे you will have a lot of saving as you grow old. तो भविष्य में जैसे आप ग्रो हो जाएंगे आपके जीवन में बहुत ही सेविंग होंगे. And so the principles of sowing and reaping is found in the Bible. तो वही प्रिंसिपल हम बाइबल में देखते हैं बोने के बारे में और काटने के बारे में. And my dear friend, it is very important for you and for me to know about it. और मेरे प्रिय हमें बहुत ही जानने की आवश्यकता है. And as Christians, we have an advantage over many things. और एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन में बहुत ही मौका है. The Bible tells us in verse number 7. और परमेश्वर के वचन कहता है 7वां वचन में, Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. इस संसार से आप धोखा मत खाइए, जो कुछ भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे. And the Bible says you cannot mock God. और वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं. Whatever you sow, you will reap. जो कुछ भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे. You say, oh pastor, because of lockdown I need to wake up at 4 o'clock and come to church at 6 a.m. in the morning. Will there be a blessing? शायद आप कह सकते हैं कि जैसे देखो मैं रविवार को मुझे 4 बजे को उठना होता है और 6 बजे को सर्विस में आना होता है, क्या उससे आशीष मिल सकती है? As a good Christian, we are not doing this to receive blessing. एक अच्छा मसीह होने के नाते हम ये नहीं कर रहे हैं आशीष प्राप्त करने के लिए. We are doing this because we love Jesus. हम ये कर रहे हैं क्योंकि हम यीशु मसीह से हम प्यार करते हैं. We are not coming here because of greediness that I will get something from हम God. यहाँ लालच की वजह से नहीं आ रहे हैं कि अगर मैं आऊंगा तो मुझे कुछ मिल सकता We है, have already received much more than we do expect. क्योंकि उससे भी अधिक हमने परमेश्वर की ओर से हमने प्राप्त किया है. You and I deserve no good in our life. हम हमारे जीवन में हम कुछ भी हम अच्छे हम रिसीव नहीं करते हैं. In spite of that, God has forgiven our sins, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, made us His children, और हमें उसकी संतान बनाया है, gave us a new home in heaven, और हमें अच्छा एक नया आशा दिया है, and He gives us an authority to come before Him at any time and any moment. और परमेश्वर ने हमें एक अथॉरिटी दिया था कि हम हर समय परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं. And He continues to bless us every day. और हमेशा हमें परमेश्वर आशीष करते रहता है. And so, but you and I don't deserve anything. लेकिन हम कुछ भी परमेश्वर की ओर से हम डिजर्व नहीं करते हैं. And yet God blesses us more than we deserve. लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें बहुत ही आशीष करता है. So we don't come to church because I want a blessing. तो हम कलीसिया में नहीं आते हैं इसलिए ताकि मुझे आशीष मिले. We come to church to bless God. हम आते हैं कलीसिया में परमेश्वर को हम आराधना करने के We लिए. come to church to make God happy. हम यहाँ पे आते हैं ताकि हम परमेश्वर को खुश कर सके. We come to church to encourage one another. हम कलीसिया में आते हैं एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए. But my dear friend, the Bible says, लेकिन मेरे प्रिय वचन कहता है whatever you sow, you will reap. जो कुछ भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे. So I may not be coming to church to receive a blessing, शायद मैं कलीसिया में नहीं आता हूँ आशीष प्राप्त करने के but लिए, based on the principle of sowing and reaping, I will be reaping much more blessing for coming to church. लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर मैं आऊंगा तो मुझे उससे भी अधिक आशीष मिल सकता है. And so everyone this morning who over here, you are sure and certain to receive a blessing from और God. जो कोई भी आज यहाँ पे है आप वचन के अनुसार आपको बहुत ही आशीष मिलेगी. You might have come here with certain prayer points in your heart. शायद आपके जीवन में बहुत ही ऐसे प्रेयर पॉइंट होगा आपके जीवन में. Somebody might have told you go there and God will answer your prayer. शायद किसी ने आपको कहा रहेगा कि वहाँ पे जा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं की You उत्तर have देगा. come here because you have experienced God's blessing in the past. आपने यहाँ पे आया क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष किया पहले. You have come here because somebody told you God will heal your sicknesses. यहाँ पे आपने आ रहेगा क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि आपकी हर एक रोग बीमार को चंगाई Or देगा God will straighten up your son and daughter. और आपके बच्चों को परमेश्वर आशीष करेगा. And so you might have heard many things. That's the reason you came early in the morning here. शायद बहुत सी चीजों को आपने सुना रहेगा इसलिए आप सुबह का आए यहाँ पे. But you might have come empty-handed. You will not go empty-handed this morning. अगर खाली हाथ आया तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे यहाँ से. God will fill your barns, as the Bible says. परमेश्वर आपकी हर एक चीजों को पूरा करेगा. Be not deceived. God is not mocked. और लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ा जाता. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा. So the good news is that you will receive a blessing if you are here to bless God. तो अच्छा समाचार यही है कि अगर आप परमेश्वर की आशीष पाएंगे अगर आप परमेश्वर की धन्यवाद You करते see, हैं. there is no blessing for greediness, आप देखते हैं कि लालच लोगों के लिए कोई आशीष नहीं है, but there is a blessing for generosity. लेकिन जेनरोसिटी के लिए आपको आशीष मिलेगी. दान के दिल. जो दिल से दान करते हैं उन लोगों के लिए.
And so when you come here to give all to God, तो आप यहाँ पे आते हैं हर चीज को देने के लिए परमेश्वर के लिए। you come to give your love to Jesus. आप यहाँ पे आते हैं परमेश्वर के प्यार को देने You के come लिए। here to give your thankfulness to Jesus. आप यहाँ पे आते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। You come here to give your time to Jesus. आप यहाँ पे आते हैं आपके समय को देने के लिए। And you come here to praise His name. और यहाँ पे आप आते हैं परमेश्वर की नाम को महिमा देने के Now लिए। you may say, I have done all these things. Will still God give me blessings? शायद आपने कहा रहेगा कि मैंने सब कुछ कर लिया, क्या फिर भी प्रभु से आशीष देगा? Don't come to church to do this to receive blessing. आप कलेशा में आपको नहीं आना चाहिए ये सब करने के लिए ताकि आप आशीष प्राप्त कर सकें। Just come to church to bless His name, to worship Him and to glorify His name. लेकिन आपको कलेशिया में आना चाहिए ताकि आप परमेश्वर को महिमा दे सकें। Now blessing will suddenly come after you. तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुत आएंगे। You don't have to seek for blessing when you seek for Christ. आपको आशीष के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि आप यीशु मसीह को ढूंढते हैं। If you go after the blessing, you may lose Christ. शायद अगर आप आशीष के पीछे जाएंगे शायद आप यीशु मसीह खो देंगे, But you go after Christ, लेकिन अगर आप यीशु के पीछे जाएंगे blessing will come after तो you. आशीष आपके पीछे आएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What you sow, you shall also reap. जो कुछ भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे। What you are sowing today? आप आज क्या बो रहे हैं? Are you sowing in sin? क्या आप पाप में बो रहे हैं? Are you sowing in temptation? शायद आप परीक्षा में बो रहे Are you हैं। sowing for your flesh? शायद आप शरीर के लिए बो रहे Are हैं। you sowing on bad words? शायद आप गलत शब्दों के लिए बो रहे Are हैं। you sowing on cursing your neighbor? शायद दूसरों को श्राप देने के लिए आप बो रहे Are हैं। you sowing in gossiping? शायद दूसरों को पीठ पीछे बोलने के लिए आप Are you sowing in bitterness in your heart? शायद मतलब करवापन के वजह से आप बो रहे Are you हैं। sowing in telling lies? शायद झूठ कहने के लिए आप बो रहे हैं इस समय। My dear friends, the Bible says, what you sow, you shall also reap. मेरे प्रिय वचन कहता है कि जो कुछ भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे। You may say, oh, there is a lot of bitterness in my heart against my neighbor. शायद आप कहेंगे कि मेरे जीवन बहुत ही करवापन में मेरे पड़ोसी के ऊपर। Today you need to lay that bitterness at the altar of the Lord. आज इस समय आपको यीशु मसीह के शरणों में उस करवापन को आपको समर्पित करना You चाहिए। may be an individual who open your mouth to tell lies about everything. शायद ऐसा व्यक्ति है जो आप हर समय झूठ कहते हैं। If you are the person who are telling lies for everything at every time, that is what you will be reaping in your life. शायद अगर आप ऐसा व्यक्ति हैं कि हमेशा हर चीज में आप झूठ कहते हैं वही आप काटेंगे एक दिन। Be very careful. This is a universal biblical principle of life. आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये पूरे विश्व का एक प्रिंसिपल है। What you sow, you shall also reap. जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। If you sow bitterness, you will reap bitterness. अगर आप करवापन बोएंगे तो आप करवापन ही काटेंगे। You will sow lying, you will reap lying. अगर आप झूठ बोएंगे तो आप झूठ ही काटेंगे। Now even your fruits will be telling lies. तो आपकी जो फल है वो भी आपको झूठ कहेगा। I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। There's a man called Abraham in the Bible. एक ऐसा व्यक्ति है बाइबल में जिसका नाम है अब्राहम। And we celebrate him very much when we talk about his faith. और जब हम उसके विश्वास के बारे में बात करते हैं हम बहुत ही आनंदित मनाते But हैं। this man once lied. तो ये व्यक्ति एक बार झूठ कहा He called his own wife as his sister. और अब्राहम ने क्या किया अपने खुद की वाइफ को ही अपना सिस्टर कहा। Remember, the Bible says, what you sow, you shall reap. आपको जानना चाहिए वचन में कहता है कि जो कुछ भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे। And then Abraham had a son called Isaac. और अब्राहम का एक पुत्र था उसका नाम था आइजक। You see that Isaac also tells the same lie. और हम देखते हैं इसहाक भी वही झूठ कहते हैं बाद He में। calls his own wife as his sister to the enemy. और हम देखते हैं इसहाक अपने शत्रु को अपने वाइफ को क्या कहते हैं वो बहन कहते And then हैं। Isaac had a son called Jacob. और इसहाक का एक बेटा उसका नाम था And then याकूब। Jacob goes and lies to his own father Isaac. और याकूब क्या करते हैं अपने बाप को वो जाकर झूठ कहता है। My dear friend, the Bible is very true when it speaks about lying, sowing and reaping. मेरे प्रिय बाइबल बहुत ही सत्य है जब हम बात करते हैं बोने के बारे में और काटने के बारे में। What you sow today, that's what your children also will be reaping. You will be reaping. जो आज आप बोएंगे आपके बच्चे लोग भी भविष्य में वही काटेंगे। So you should be investing very wisely today, so you may reap the blessing and your children also will be reap the blessing. तो आज आपको ज्ञान से बहुत ही सब कुछ चीजों में आपको इन्वेस्ट करना है ताकि भविष्य में आपके बच्चे लोग भी आपकी परमेश्वर की आशीष को Are you प्राप्त कर sowing सकें। every day in praying to the Lord? क्या आप परमेश्वर की प्रार्थना में क्या आप हमेशा बो रहे हैं And you will reap the blessing tomorrow. और आप कल को आशीष प्राप्त And करेंगे your children also will be doing the same. और आपके बच्चे लोग भी कल वही करेंगे। What you do today is what your children learn today. जो कुछ आज आप करते हैं वही आपके बच्चे लोग कल को सीखेंगे। You may be complaining, oh, my children don't listen to me. शायद आप इस समय कह रहे हैं कि मेरे बच्चे लोग मुझे सुनते नहीं। But my dear beloveds, you must understand your children are watching and learning more than what you say to them. लेकिन मेरे प्रिय आपके बच्चे लोग आपको ज्यादा देख रहे हैं जो कुछ भी आप उन लोग से ज्यादा कह रहे हैं। Your action actually speaks louder than your talk. आपकी जो क्रिया है उससे भी अधिक ज्यादा बातचीत करता So है। when you leave and apply
and set a good example for your children, जब अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण रखते हैं, that is what they will be also setting in the days to come. तो आने वाले दिन में उन लोग भी वही एग्जाम्पल को उन लोग रखेंगे. What you do today is what your children are going to do. जो कुछ आप आज कर रहे हैं वही आपके बच्चे लोग भी करेंगे. When a person sits and keeps drinking in front of the children, that's what the children does tomorrow when they grow up. जब एक व्यक्ति अपने बच्चों के आगे उन लोग दारू पीते रहते हैं, कल को भी वही बच्चे लोग दारू पिएंगे. You use your mouth to give bad words to your neighbors. That's what your children are doing tomorrow. अगर आपके पड़ोसी के बारे में अगर आप बहुत ही बुरी बुरी बात करेंगे तो आपके बच्चे लोग भी वही करेगा कल को. You go home and talk bad about your people, your family. That's what your children will be doing अगर tomorrow. आज आप अपने जनों के बारे में अगर विरुद्ध बात करते हैं, आपके बच्चे लोग भी वही करेंगे कल को. One thing I'm so glad about you is that you fear God. लेकिन एक बहुत ही आनंदित हूं मैं क्योंकि आप परमेश्वर से भय करते हैं. And I know that you don't talk evil about one another here. और मैं जानता हूं कि आप एक दूसरे के बारे में अगर आप बुरे बात नहीं करते हैं. But I have seen many Christians who go to church लेकिन मैंने ऐसे बहुत से मसीह लोगों को देखा जो कलीसिया में जाते हैं and they go home और उन लोग घर जाते हैं and they backbite about their pastor and their church members. और पासवान के बारे में कलीसिया के मेंबर्स के बारे में उन लोग पीठ पीछे बात करते हैं. And such people never receive God's blessing. और उस प्रकार के लोग कभी भी आशीष प्राप्त नहीं They're करते हैं always bitter and grumpy in their life. क्योंकि उन लोग हमेशा करवापन होते हैं दूसरे के बारे They're में. always sorrowful in their उन life. लोग अपने जीवन में बहुत ही दुखित है. I am telling you what the Bible teaches. If you want to be happy all your life, अब मैं आपको कहना चाहता हूँ बाइबल से, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, make a decision to live a life for the glory of God. आपको एक डिसीजन लेना अपने जीवन में कि आप मसीह के लिए जीना है. Whatever you do, do it honestly for the glory of जो God. कुछ भी आप करते हैं आप मसीह के लिए करिए. Whatever you speak, do speak for the glory of जो God. कुछ भी आप बात करते हैं आप परमेश्वर के लिए करिए Speak truth. और हमेशा सत्य बात Be करिए. honest. हमेशा ऑनेस्ट रहिए And don't use foul words from your mouth. और कभी भी गलत बातों शब्दों को इस्तेमाल मत कीजिए. What you sow, you shall reap. जो कुछ भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे. And that is what your children also do. और वही आपके बच्चे लोग भी करेंगे कल The को. Bible says in verse number 8, और परमेश्वर के वचन 8वां वचन में कहता है, for he that soweth, you can put the fan for them. क्योंकि जो कोई बोते हैं, For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश ही काटेगा. But he that soweth to the spirit shall of the spirit reap life everlasting. और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा. If you're going to live life for your flesh today, अगर आप अपने शरीर के लिए आज अगर जिएंगे, if you're going to live in sin today, तो अगर आप पाप में जीते हैं, if all you do is satisfy your flesh, अगर हमेशा आपके शरीर को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, live in all kind of wicked things, हर बुराई में आप करते हैं, that is what is going to happen tomorrow. तो वही कल को आपके जीवन में होंगे. If you sow today, that's what you're going to get tomorrow. अगर आप आज जो बोएंगे वही आप कल काटेंगे. You see, if you take a papaya seed, अगर आप एक पपाया का सीड लेते हैं, one little seed, एक छोटा सा सीड, and you go deep down and dug that earth and put that seed under the earth, और जमीन खोदकर अगर आप वो बीज को बोएंगे and you cover it up, और आप उसको ढक देंगे and then rain comes, और उसके बाद बारिश आते हैं, and then slowly a few days later you see a plant coming और out, हम देखते हैं कुछ दिन बाद एक पौधा निकल के आता है बाहर, and a few months later you see the tree growing up, और कुछ महीने के बाद जो पेड़ होता है वो बड़ा हो जाता है, and a few months later you see papayas coming. और कुछ महीने के बाद आप देखते हैं कि फल आने लगता How है. many seeds did you sow? कितना आपने बीज बोया? Huh? जोर से. Only one, एक. केवल एक. But now when the tree has grown, लेकिन जैसे वो पेड़ बढ़ गया, there was not only one papaya that came, केवल एक ही पपाया फल नहीं था, but there are hundreds of papaya that's coming. लेकिन बहुत सारे फल आए. You just sowed one seed. आप केवल एक बीज बोते हैं. You sowed the papaya seed, आपने पपाया सीड बोया, but you're getting 100 fruits. लेकिन आपने बहुत सारे फल आपको मिला. But in that papaya tree, you're not getting mangoes. लेकिन उस पपाया ट्री में आपको आम का फल नहीं मिल रहा है, You're not getting apples. आपको एप्पल नहीं मिल रहा है, You're not getting coconut. आपको नारियल नहीं मिल रहा है. From the papaya seed you sowed, you're only getting papaya आपको fruit. पपाया के पेड़ से आपको केवल पपाया मिलता है. You understanding this? क्या आपने समझा? You sowed one papaya seed. आपने केवल एक पपाया सीड को आपने बोया, And now hundreds of papayas are coming. और बहुत सारे फल आपको मिला. That is exactly what happens in life. और वही हमारे जीवन भी होता है. What you sow little bit today in life, जो कुछ भी आप आज छोटे से बोएंगे, tomorrow you are getting more of that. और कल को आप बहुत ही पाएंगे. If you sow in your sinful life, अगर आप आज आपके पाप में अगर आप बोएंगे, you will reap sinful
stuff in your life. और पाप की चीजों को आप कल काटेंगे। If you sow in the Lord, अगर आप मसीह में अगर आप बोते हैं, if you live for the अगर आप Lord, मसीह के लिए जीते हैं, if you obey in the अगर Lord, आप परमेश्वर में आज्ञा पालन करते हैं, tomorrow you shall be receiving abundant blessings in your life. तो कल को आपके जीवन में बहुत ही आशीष को आप प्राप्त करेंगे। This is Bible. और ये बाइबल है। So as a Christian, we need to obey the word of God. एक मसीह होने के नाते हम परमेश्वर की वचन का आज्ञा पालन करना चाहिए। Whatever we do, we need to do joyfully. जो कुछ भी हम करते हैं हमें पूरे आनंद के साथ करना That चाहिए। is something that I teach my children. और एक ऐसा चीज है जो मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ। When we tell them to do something, जब हम उन लोगों को कुछ करने के लिए कहते हैं, they immediately have this sad look on their face. और उन लोग के चेहरे में बहुत ही दुखी हो जाते हैं उन लोग। They play with all their toys. और उन लोग अपने खिलौना के साथ उन लोग खेलते And हैं, then when the playing game is done, और उन लोगों का जो खेलना जब बंद हो जाता है, they think they can just go and do whatever they want. और उन लोगों को सोचता है कि उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। But we say, no, you need to clean up your toys. और हम कहते हैं नहीं नहीं, अपने खिलौनों को आपको धोना चाहिए। You played, you clean. आप लोगों ने खेला, इस समय आप लोगों को धोना भी चाहिए। Now when we say you clean the toys, जब हम कहते हैं कि तुम लोगों को भी धोना चाहिए, immediately their face changes. और उन लोगों का जो चेहरा वो बदल जाता है, And they become, और उन लोग इस प्रकार से दुखी हो जाते हैं, and they become very sad and they make their face और उन लोग दुखी हो जाते हैं, a sorrowful face, और बहुत ही दुखी a grumpy face. और उन लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। They उन don't लोग like to be told what to do. उन लोग को पसंद नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। And when they make a sorrowful face, और उन लोग जो बहुत ही मतलब दुखी चेहरा बना देता है, then I take my sword. और उस समय मैं अपने हथियार को लेता हूँ, I have a stick in my house. और मेरे घर में एक स्टिक है, And I take the stick in my hand उस लाठी को मैं लेता हूँ, and I say, और मैं कहता हूँ, when I say something, you obey with joy. और जो मैं कुछ कहता हूँ तुम्हें आनंद के साथ मानना चाहिए, Or नहीं तो you'll get this stick under your butt. नहीं तो आपको एक लाठी मिलेगा। So immediately the sorrowful, grumpy face now become a smiling तो face. क्या होता है, उन लोग के जो दुखी चेहरे थे उन लोग वापस से क्या हो जाता है, खुशी हो जाता So है, they will smile and pick up the toys. और उन लोग हंसेंगे, और उन लोग और फिर जो कहे वो इसको ही करते हैं उन लोग। So when the Bible tells us certain things in for our benefit, तो वो जब वचन हमें कहते हैं कि हमारे कुछ प्राप्त के लिए we should do it joyfully, dear friends. हमें भी आनंद के साथ करना चाहिए। You may not feel good about शायद it, आपको अच्छा नहीं लगा उसके लिए, but you will benefit rich blessings in the days to come. लेकिन आपके जीवन में बहुत ही आशीष मिलेगी। You see, what you do today, that's what your children will become tomorrow. जो आज आप करते हैं वही आपके बच्चे लोग भी कल को मिलेगा। Now you may say, well, I'm not married and I'm a long time, I can enjoy now as much as I want. शायद आप कह सकते हैं कि मेरा शादी नहीं हुआ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अभी भी। No. What you do now is what you will reap, what your children will later tomorrow. नहीं, जो कुछ भी आप आज करते हैं वही आपके बच्चे लोग भी कल को प्राप्त करेगा। You see, if a father who is a drunkard, their children might become a drunkard. जो पिता जो हमेशा दारू पीता है वो भी कल को शायद दारू पीने The लगेगा। only way to break that curse is when you come into Jesus Christ. श्राप को तोड़ने के लिए आपको केवल यीशु मसीह के पास आना चाहिए। When you come into Jesus Christ, जब यीशु मसीह में आते हैं, the Lord Jesus cleanses and washes all your curses and your sins. यीशु मसीह क्या करता है, हर एक पापों को, हर एक श्राप को वो शुद्ध कर देता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। No matter what your grandfather has done, if you're not saved, you're also going to do it. जो कुछ भी आपके ग्रैंडफादर लोगों ने किया, जो कुछ भी उन लोगों ने किया, आपको भी वही करना है, करना नहीं, वही तुम करेंगे। वही तुम करोगे। अरे भाई डरा रहे हो आप। हाँ? And so what your grandfather did, that's what you're going to do. जो कुछ भी आपके ग्रैंडफादर ने किया वही आप भी करेंगे। But if you turn to Jesus Christ, लेकिन अगर आप यीशु मसीह में आएंगे, the Lord will break that curse क्या करेंगे, यीशु मसीह उस श्राप को तोड़ देगा and make you a new creature और आपको एक नया सृष्टि बनाएगा, and give you a new life. और आपको एक नया जीवन देगा, And you will become the child of और God. आप परमेश्वर के संतान बन And जाएंगे, all your sins will be और आपके हर forgiven. एक पाप क्षमा होगा, Your curses will be destroyed. आपके हर एक श्राप क्षमा होगा, And your curses will now turn into blessings. और आपके जो श्राप है वो आशीष में होगा Hallelujah. अभी। That's why you need to be sowing in your spirit right now. और इसीलिए आपको आत्मा में अभी बोना है, Your words should be used with seasoned with salt. और क्या होना है, आपकी जो शब्द है वो हमेशा नमकीन होना चाहिए, And your life, your time should be spent in praying and praising God. हमेशा आपकी टाइम हमेशा प्रार्थना में और परमेश्वर की आराधना में होनी This चाहिए। young age should be used in investing in the kingdom of God. और ये जो उम्र है हमें परमेश्वर के लिए हमें इन्वेस्ट करना है, Singing for the glory of God. परमेश्वर के लिए गाना है, Studying the word of God. परमेश्वर की वचन की स्टडी करना, Telling people about Jesus और लोगों को Christ. यीशु
मसीह के बारे में कहना, inviting people to Christ, लोगों को निमंत्रण करना यीशु मसीह में, investing a life for the furtherance of the gospel. और परमेश्वर की सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करना। Every mothers and fathers should be living for your children also today. जितने सारे माएँ हैं, पिता हैं, उन लोगों को बच्चों के लिए जीना है। If you will be spending your time in praying to Jesus on your knees, अगर आप अपने घुटने में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, God will be working on your children's तो also. आप परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में कार्य If करेगा। you will spend your time sitting under the feet of Jesus Christ today, अगर आप अपने टाइम को बिताते हैं यीशु मसीह के शरणों में आकर, that's what will happen to your children तो also. आपके बच्चों के जीवन में वही होगा कल को। A mother and a father that will spend time under the feet of Christ will be bearing children who will spend their life under the feet of Christ. जो माँ बाप परमेश्वर की यीशु मसीह के शरणों में आकर टाइम को बिताते हैं, उन लोग बच्चों के जीवन में वही आशीष को Now प्राप्त you may दिलाएंगे। say, but my husband doesn't listen to me. और आप कहेंगे कि मेरी जो पति है वो नहीं सुनता है, I pray, but he doesn't pray. मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन वो प्रार्थना नहीं करता है, I come to church, but he doesn't come. मैं चर्च में आती हूँ लेकिन वो चर्च में नहीं आता है। Or you may be a husband who say, I pray, but she doesn't pray. शायद पिता है, वो आप कह सकते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, वो प्रार्थना नहीं करती है। I come to church, she doesn't come to मैं church. कलीसिया में आता हूँ लेकिन वो नहीं आती है। I read my Bible, she doesn't read मैं her बाइबल Bible. पढ़ता हूँ, वो बाइबल नहीं पढ़ती है। So now you don't have to force them, आपको उन लोगों को फोर्स नहीं करना चाहिए, because if you start forcing, they'll become more hardened. अगर आप लोग फोर्स करते जाएंगे उन लोग बहुत ही कठोर बन जाएंगे। You invite them आप उन लोगों को निमंत्रण कीजिए, and you spend time in praying for them. आप प्रार्थना में आप जीवन को व्यतीत, You set an example with your life and testimony. आपके जीवन के द्वारा, आपके उदाहरण के द्वारा एक उदाहरण बनाइए उन लोगों के If जीवन you में। are consistent in your life, अगर आपके जीवन में आप बहुत ही कंसिस्टेंट हैं, your children are watching your life. आपके बच्चे लोग आपको देख रहे हैं, Your husband will watch your life. आपके जो पति वो भी देख रहे Your हैं, wife will watch your life. आपकी जो पति वो भी देख रहे And हैं। because of your consistency in Christ, यीशु मसीह में जो कंसिस्टेंसी आप कर रहे हैं, God will fulfill His promise by allowing you to reap blessing in your spirit. तो परमेश्वर भी आपके जीवन में वही आशीष देंगे, And because God gives you good health, और परमेश्वर आपको अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य देगा, and because God blesses you with all other blessings, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको हर आशीष से ब्लेस किया your है, children will start watching you. तो आपके बच्चे लोग भी आपको देखना शुरू Your करेंगे, wife will start watching you. कि पत्नी भी आपको देखनी शुरू Your करेंगे, husband will start watching you. पति भी देखने के लिए शुरू करेंगे, And they say, wow, look at what God is doing upon his and her life. और उन लोग कहेंगे देखो परमेश्वर कितना आशीष दे रहे हैं उन लोगों के And जीवन I में, want to receive the life that this person has. और मैं भी उसी प्रकार से आशीष प्राप्त करना चाहता हूँ जो व्यक्ति उसके पास भी आशीष है परमेश्वर की। Consistency will bear great fruits in life. और कंसिस्टेंसी हमारे जीवन में बहुत ही आशीष और या हम फल लाएंगे। If you all that you do is live and be a lazy person, अगर आप हमेशा लेजी क्रिश्चियन बनते हैं, that is what your children will become. तो आपके बच्चे लोग भी वही बनेंगे That कल। is what your husband will और become. आपके पति वही बनेगा, That's what your wife will पत्नी भी become. वही बनेगी। You use your life and your testimony for Christ in your home. आपके जीवन में आपको परमेश्वर की गवाही को आपको जीवन में इस्तेमाल करना I चाहिए। am not talking about the world, I'm talking about your family मैं today. संसार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परिवार के बारे में बात कर रहा हूँ। You may be praying, oh God, bless my children. शायद आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बच्चों को आशीष कीजिए, Oh God, raise my children to become a man of God and a woman of शायद आप God. प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी ऐसा बनाइए मेरे बच्चों को। Now you may say, oh, but I have done so much evil in the sight of शायद God. आपने कहेंगे कि मैंने परमेश्वर के सम्मुख बहुत ही गलत काम किया, But if you have trusted Christ, God has washed away all your sins. लेकिन अगर आपने यीशु को विश्वास किया तो यीशु मसीह ने हर एक पाप को क्षमा किया है। God has made you whiter than snow. परमेश्वर ने आपको स्नो से भी ज्यादा व्हाइट बनाया God है, has purified your life. परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया है। But now today, तो आज God say, obey my word. परमेश्वर कहता है कि मेरी वचनों को पालन God say, करो, walk according to my word. मेरी वचनों के द्वारा तुम चलो। God say, don't look at the past, look at the present and the future. अतीत को मत देखो लेकिन इस समय देखो और भविष्य को देखो। And now if you fall, लेकिन अगर आप गिरते हैं, God say, you confess your sins. परमेश्वर कहता है कि आपके पापों का प्रायश्चित करो, And I will forgive you immediately. और मैं तुरंत आपको क्षमा करूंगा, And I will bless your life. और मैं आपके जीवन को आशीष करूंगा। You live your life for your wife today. आपके जीवन को आपको पत्नी के लिए जीना You है, live your life for your children आपके today. बच्चों के लिए आपको जीना है, You live your life for yourself today. आपके लिए खुद को भी जीना है, You spend your time in investing in the God's kingdom. आपको परमेश्वर की राज्य के लिए आपको जीना है। My dear friend, if you put 1,000 rupees every month in your bank, मेरे प्रियो, अगर आप 1000 रुपीस अगर आपके बैंक में डालते हैं हर एक you महीने will को, notice in 12 months you will be getting 1,000 and some extra interest in your bank. शायद 12 महीने के अंदर आप 12,000 and extra. शायद 12 महीने में ज्यादा आप पैसा प्राप्त करेंगे। If you sow 1,000 today, अगर आप आज
1000 रखते हैं and 1,000 tomorrow, और कल को 1000 रुपया, and in 12 months, तो 12 महीने में you won't get 1,000, आपको 1000 नहीं मिलेगा, but you will get 12,000 plus something. और आपको 12,000 मिलेगा और उससे भी अधिक। Hallelujah. हालेलुया। If you put currency, you won't get gold and diamonds. अगर आप करेंसी डालते हैं आपको सोना चांदी नहीं मिलेगा, If you put currency, you will get currency. अगर आप करेंसी डालते हैं आपको वही मिलेगा, That's what the Bible teaches. और वही वचन हमें सिखाता है, What you sow, you shall जो reap. कुछ भी आप बोते हैं वही आप काटेंगे। Dear friend, there is a great life ahead of you. मेरे प्रियो, हमारे आगे बहुत ही एक अच्छा जीवन है, A life of blessing and a life of curse. ऐसे जीवन की आशीष के जीवन और श्राप के जीवन, And God is telling you need to choose it today. और परमेश्वर आपको कहता है आपको चूज करना है आज। When you make the right choice, the blessing is going to come after you. जब आप एक सही चॉइस करेंगे तो आशीष आपके पीछे आएंगे। You choose to live for the life, God will bless your life tomorrow. अगर आप जीवन के लिए जीना चाहते हो तो यीशु मसीह आपके जीवन को ब्लेस You करेगा। invest your time, God will give you good times. अगर आप सही टाइम में इन्वेस्ट करेंगे तो यीशु मसीह आपको सही टाइम देगा। You invest your testimony, God will help you to have better testimony. गवाही में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जीवन में और ज्यादा अच्छा टेस्टिमनी You आएंगे। pray for your family, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना and है your family will bloom like a lotus. तो आपके परिवार भी पद्म फल के जैसा मतलब बहुत ही होगा। You praise God for your family. आपके परिवार के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं Your family will smell like a roses. और आपके जो परिवार है खुशबूदार होंगे। You spend your time in the presence of God today. आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आपको जीना है। The life that you will live today is the life your family will reap tomorrow. जो जीवन आज आप जिएंगे वही परिवार के वही आपके परिवार भी कल को जिएंगे। So don't try to sow anything on your flesh. तो आपके शरीर में कोई भी आप चीजों को बोने के लिए कोशिश मत कीजिए, Because if you sow in the flesh, क्योंकि अगर शरीर में अगर आप बोएंगे you will reap in the flesh. तो आप शरीर में ही काटेंगे, And that reaping in the flesh is very bad and evil. तो शरीर में काटना वो बहुत ही खराब है। Amen. आमीन। A lot of people think I will commit sin tomorrow. If I get AIDS, God will heal me. तो अगर आप कहेंगे कि मैं कल पाप करूंगा और मुझे परमेश्वर मुझे मतलब चंगाई देगा, But if you are doing it in that sense, you will be reaping on the flesh. शायद उस प्रकार से अगर आप सोच कर आप करेंगे तो आप शरीर में ही काटेंगे। You spend your time to live for the glory of आपको God. अपने जीवन को समय को बिताना है परमेश्वर की महिमा के लिए। What you sow, you will reap. जो कुछ भी आप बोएंगे वही आप Now, काटेंगे। dear friends, sowing is some time, मेरे प्रियो, जो बोना है वो कुछ दिन के लिए, but reaping is a long time. लेकिन जो काटना होता है बहुत ही लंबे समय के लिए। You may just sow the seed at one time. शायद आप जो सीड है उसको आप केवल एक ही बार बोएंगे, Only one time you will sow the seed. केवल एक ही बार आप सीड को बोएंगे, But when that reaping comes, लेकिन जो काटने के समय होगा you will be reaping a lot. आप बहुत ही ज्यादा काटेंगे। What you want to reap in the life? आपके जीवन में आप क्या काटना चाहते हैं? Do you want to reap blessing or do you want to reap curses? क्या आप आशीष प्राप्त करना चाहते हैं या फिर श्राप प्राप्त करना चाहते हैं? Your words are like carom boards. आपकी जो शब्द है कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर जैसा होता है। Have you seen carom boards? क्या आपने कैरम बोर्ड देखा है? Okay, forget about carom board. Echo. एको के बारे में, When you go on the top of the mountain, जब आप माउंटेन के ऊपर जाते हैं, and you might have done that. Hello. शायद ने उसको क्या हेलो करके, And then what you heard? तो उस समय आप क्या सुनते हैं? You heard hello, hello, hello. तो उस समय hello. डबल आवाजें सुनते And you हैं keep getting the voice again back to you. और वापस से वही आवाज आपको सुनाई देता है, And that is what life is. और वही है हमारा जीवन भी। Some of the young people say, I love you. और बहुत से लोग कहेंगे आई लव यू कहेंगे, Because they saw that in the movie. शायद उन लोगों ने वो मूवी में देखा And रहेगा, then you get it back. और उन लोग वापस से वही प्राप्त करते And हैं, that is the truth. और वही सत्य है। You love people, you will receive love. अगर आप लोगों को प्यार करेंगे तो आप प्यार ही प्राप्त करेंगे, You curse people, you will receive curse. लोगों को आप श्राप देंगे तो आप श्राप ही प्राप्त You करेंगे। live in the flesh, you will receive fleshly benefits. आप शरीर में जिएंगे तो आपको शरीर में ही प्राप्त होगा, And that will be sickness, और आपके जीवन में रोग बीमार, sorrows, दुखी, strife, बहुत ही समस्याएं sadness, और दुखी जीवन, stress and depression. और हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे। But if you will be sowing joy, लेकिन अगर आप आनंद को अगर आप सो करते हैं, you will be sowing blessings. आपके जीवन में आप ब्लेसिंग्स को ही काटेंगे, You will be sowing a life of prayer and commitment to Christ. और प्रार्थना में और यीशु मसीह में आप हमेशा सोएंगे, That is what you will be reaping. और वही आपके जीवन में आप काटेंगे। What you want to reap today? आप आज क्या काटना चाहते हैं? Always remember, you are not the only one who is going to reap. आपको यहाँ पे समझना चाहिए, केवल आप ही नहीं प्राप्त करेंगे, What you sow, your family also will be reaping. जो कुछ भी आप बोएंगे आपके परिवार भी वही काटेंगे। Keep that in your mind, my beloveds. आपके मन में वो रखना चाहिए आपको।
You know, you sowed one papaya seed. आपने एक ही पपाया का बीज बोया, But when the papayas came, लेकिन जब पपाया आया and it was red and orange, और वो बहुत ही लाल हो चुके थे, the whole family went to cut the क्या papaya. हो गया, पूरे परिवार कट करने के लिए गए They took this big fruit. और उन लोगों ने बहुत ही बड़ा फल को लिया। You can't eat it alone. आप उसको अकेला नहीं खा The सकते हो। whole family is cutting and eating. और पूरे परिवार उसको कट करके खा रहे It हैं। is the same way how blessings comes in your और life. उसी प्रकार से आशीष आपके जीवन में आते And हैं, it is the same way how curses come into your और life. उसी प्रकार से श्राप भी आपके जीवन में आता है। What you sow, you shall reap, dear जो कुछ friend. भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे। There are a lot of young people out there in the world reaping in sorrows and sickness. हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन लोग पाप में जी रहे हैं और पाप में उन लोग सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। You are in the right place sowing in the kingdom of God right now. लेकिन आप सही जगह में हैं, परमेश्वर की राज्य के लिए आप बो रहे हैं। Whatever it is, your past is gone. जो कुछ भी आपके अतीत है वो जा चुका है। God has forgiven you and cleansed you. परमेश्वर ने आपको क्षमा कर चुका Now, है। if you're not a Christian this morning, अगर आप एक क्रिश्चियन नहीं हैं, if you have not received Jesus in your life, अगर आपने यीशु ग्रहण नहीं किया अपने जीवन में, today you should receive the Lord Jesus. आज आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना है। Because He's the one true God. यीशु मसीह सत्य परमेश्वर He है became man और वो मनुष्य बना and He lived a sinless perfect life और on वो- the earth for you and for me. और पवित्र जीवन जिया वो हमारे हम सभी के And लिए। He took your sins upon Him और यीशु ने अपने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया and He died on the cross by shedding His precious और blood. लहू बहाने के द्वारा क्रूस पे मरा, He was buried and rose again on the third तो day. गाड़ा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। No man on the earth can forgive your sin but Jesus Christ. संसार में कोई भी मनुष्य आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता, No लेकिन man यीशु died मसीह। on the cross for your sin but Jesus कोई भी Christ. मनुष्य क्रूस पे नहीं मरा, लेकिन यीशु मसीह। No man rose again on the third day but Jesus कोई Christ भी alone. मनुष्य तीसरे दिन में जी नहीं उठा, लेकिन यीशु मसीह जी उठा। Today, if you will believe in Jesus Christ, आज आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, your sins will be आपके forgiven. पाप क्षमा होंगे, You will have a name in heaven. आपके नाम हेवन में होगा, You will have a home in heaven. आपके पास घर होगा, You will be the child of आप God. परमेश्वर के संतान बनेंगे, You won't go to hell. आप नरक में नहीं जाएंगे। But if you die without Jesus, लेकिन आप यीशु मसीह के बिना अगर you will मरते lose हैं, everything in life. आपके जीवन में हर चीज को आप खो You will देंगे, spend eternity in आप hellfire. हमेशा नरक में जिएंगे। Jesus said, you don't have to do that. यीशु मसीह कहता है आपको वो नहीं करना You है, come to me आप मेरे पास आओ and I will save you और मैं तुम्हें बचाऊंगा and I will forgive you और मैं तुम्हें क्षमा and करूंगा I will make you my और मैं child तुम्हें अपना संतान बनाऊंगा and you live your life in me और अपने जीवन को मुझ में जिए and I will bless you. और मैं तुम्हें आशीष करूंगा I will bless you in every steps of your और life. हर कदम में आपको मैं आशीष करूंगा। So the Bible says in verse number 9, and I finish it here. तो 9वां वचन में कहता है, And let us not be weary in doing well, हम भले काम करने साहस ना for छोड़ें, in due season we shall reap if we faint not. क्योंकि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर हम काटना So काटेंगे। the Bible says, don't get tired. तो परमेश्वर के वचन कहता है आप टायर्ड मत हो। You see, today you may say, Arey, last Sunday I came to church, I didn't get any blessing. आप कहेंगे कि पिछले रविवार को मैंने चर्च में आया लेकिन मैं आशीष नहीं पाया। What you are doing is you are coming with seeds. आप क्या कर रहे हैं, आप बीज के द्वारा आ रहे हैं। When you came last Sunday, जब आप पिछले हफ्ते को आए, you bent down and put that seed आप- under the earth. आप झुक कर क्या करें, आप संसार में आपने बीज को बोया, One seed. केवल एक ही बीज। When was the last time you put one papaya tree and the next day papaya came in your tree? ऐसा कौन सा दिन है जो जिस दिन में आपने पपाया ट्री मतलब बीज को बोया और दूसरे दिन में पपाया का पेड़ आ गया? It takes time. ये समय लेता है। But Bible says don't get tired. और परमेश्वर की वचन कहता है आप थक मत जाओ, Do it. करो In due season, और वही समय में you shall certainly reap blessings. और कुछ समय के बाद आप आशीष प्राप्त करेंगे। Whatever you have done for Christ जो कुछ भी आपने यीशु के लिए किया will never be wasted, dear friend. और वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा। That's why it's important to come to the church. इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कलीसिया में आने। Why? क्यों? When you come to church, you listen to such messages. जब आप कलीसिया में आते हैं उस प्रकार की सुसमाचार को आप सुनते हैं And then you learn God's word. और आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। Oh, I'm tired today. अगर आप कहेंगे मैं बहुत ही टायर्ड हूँ इस समय, Oh, my clothes are not ready today. मेरे जो कपड़े हैं वो रेडी नहीं हैं, Oh, I'm not feeling well मुझे today. अच्छा फील नहीं हो रहा है, Oh, my headache is there. सर दर्द हो रहा है, My back is hurting. मेरे पीछे बहुत ही दर्द हो रहा Only है। when Sunday morning comes, all these excuses come. केवल जब रविवार आता है ये सब एक्सक्यूज हमारे जीवन में That आते is हैं what Satan wants you to do. और वही शैतान चाहता है आपको करने के लिए। And Satan doesn't want you to reap blessings. और शैतान नहीं चाहता कि आप आशीष प्राप्त करें। Oh, it is too early. ये बहुत ही जल्दी है, Oh, it is too ये late. बहुत ही लेट है, Oh, pastor is preaching too long. पास्टर बहुत ही लंबा प्रचार कर रहा Oh, है pastor is preaching too short. और पास्टर बहुत ही शॉर्ट प्रचार कर रहा है Arey, too many people are coming. और बहुत से लोग आ रहे हैं, Very less people are coming. बहुत से कम लोग आ रहे हैं। And Satan will try to make you complain on everything, whether good or bad. और शैतान वही चाहेंगे कि आप हर चीज में आप ताकि कंप्लेन करें। You need to thank God because you have had headache.
क्योंकि आप परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाएं, क्योंकि आपके पास सर है इसलिए आपके पास हेडेक होता है। Imagine walking on this earth without your head. अगर आप सोचो कि संसार में बिना सिर के आप चल रहे हैं, What will happen? क्या होगा उस समय? Just imagine, no head, you're just walking. आप जस्ट सोचो कि आपके पास हेड नहीं है, बस आप चल रहे हैं। Thank God for head. Amen. आपको हमें धन्यवाद देना चाहिए सिर के लिए। So remember, dear friend, when you sow, reaping is sure. तो मेरे प्रिय, जब हम बोएंगे तो हम काटेंगे ही जरूर। Okay, I will finish it with these things. Keep in mind. और एक उदाहरण के मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। What you sow, you shall reap. जो कुछ भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे। सब लोग बोलो, जो कुछ बोएंगे जो कुछ बोएंगे हम वो काटेंगे। हम वही काटेंगे। जैसा करनी जैसा करनी वैसा भरनी। वैसा ही भरनी। सब लोग जोर से बोलो यार, जागो जागो, जैसा करनी जैसा करनी वैसा भरनी। वैसा ही भरनी। जो कोई बोएंगे वही तुम काटेंगे। वही तुम काटेंगे। Alright, now this is the truth. यही सत्य है। What you sow, you shall reap. जो कुछ आप बोएंगे वही आप काटेंगे। But the reaping has consequences. लेकिन जो काटना होता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है। Reaping is sure. जो काटना है वो मतलब श्योर है। Reaping is sure. आप जरूर काटेंगे। Now reaping is same. लेकिन जो काटना होता है वो सॉरी सर Same. जो आपने बोया हाँ, वही तुम काटेंगे। वही आप काटेंगे। नारियल डालने से पपाया नहीं मिलेगा। नारियल डालने से सिर्फ नारियल मिलेगा, है ना? अगर पाप में जिएंगे सिर्फ पाप बोएंगे तुम, अब पाप काटेंगे। इफ यू लिव इन सिन यू विल रीप इन सिन। अगर आप पाप में जिएंगे तो आप पाप ही काटेंगे। इफ यू सो इन क्राइस्ट यू विल रीप इन क्राइस्ट। अगर आप मसीह में बोएंगे तो आप मसीह में ही काटेंगे। By sowing in Christ you will not be reaping in pastor. अगर आप मसीह में बोएंगे तो आप पास्टर में आप नहीं काटेंगे। By sowing in Christ you will not reap in Modi. अगर आप मसीह में अगर आप बोएंगे तो आप मोदी में नहीं काटेंगे। You will reap in Christ if you sow in Christ. अगर आप मसीह में बोएंगे तो मसीह में ही आप काटेंगे। So sowing is sure. Reaping is sure. तो काटना अवश्य है। जो आशीष है वो जरूर आएगी आशीष। Okay, so reaping is sure. तो जो काटना होता है वो बहुत ही श्योर है। Reaping is the same. What you sowed, that is only that you will reap. और वही आप काटेंगे जो कुछ आपने बोया है। If you sow in prayer, you will reap in prayer. अगर आप प्रार्थना में बोते हैं तो आप प्रार्थना में ही आप प्राप्त करेंगे। If you sow in joy, you will reap in joy. अगर आप आनंद में अगर आप बोते हैं तो आनंद ही आप प्राप्त करेंगे। If you sow in Christ, you will reap in Christ. अगर आप मसीह में बोएंगे तो आप मसीह में ही प्राप्त करेंगे। So reaping is sure. तो जो बोना होता है वो बहुत ही अवश्य है। Reaping is same. और जो काटना होता है वो सेम होता Now, है। the third is very important. और जो तीसरी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Reaping is much more. और जो काटना है वो उससे भी कहीं और ज्यादा है। Only once I gave gali. और केवल मैंने एक ही डाला है। You will receive more galis afterwards. लेकिन उस और अधिक आप गाली उस समय प्राप्त करेंगे। But you bless somebody once, लेकिन अगर आप एक जन को आशीष करते हैं you will receive more blessings. और उससे भी कहीं और आपको आशीष मिलेगा। Because reaping is much more. क्योंकि जो काटना होता है वो उससे भी कहीं अधिक है। Am I right? क्या मैं सही हूँ? You sow one papaya seed. आपने एक पपाया सीड डाला है। When the tree grew up, जब पेट भर जाता है आप देखते हैं बहुत सारे फल you see hundreds of papayas. और 100 बहुत सारे फल। And when you cut the papaya, और जब आप पपाया को कट करते हैं not one seed, you see many seeds. आपको केवल एक ही सीड दिखाई देता है लेकिन बहुत सारे सीड। So blessing is great. तो आशीष बहुत ही अद्भुत है। If you sow in blessing, blessings will come. अगर आप आशीष में बोएंगे तो आशीष ही आप प्राप्त But करेंगे। if you reap in all these unnecessary, if you sow in all these wicked and bad things, अगर आप गलत चीजों में अगर आप बोएंगे that is what you will receive later. और वही आप प्राप्त करेंगे। So I don't want you to enjoy those curses in your life. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग उस श्राप में आप जिए या फिर प्राप्त करें। You know what is my prayer for you today? क्या आपको मालूम है मेरी प्रार्थना क्या आप सभी लोगों के That लिए? you will only be exalted by the Lord Jesus क्या Christ. हमेशा यीशु मसीह के द्वारा ताकि आप ऊपर उठा जा सके, That you will be successful every day. ताकि आपके जीवन में आप सक्सेसफुल हो सके। The Lord will only bring blessings into your life. ताकि मसीह आपके जीवन में केवल आशीष ही ला My सके। prayer is God will only bring good health in your और मेरी life. प्रार्थना ये कि मसीह आपके जीवन में केवल अच्छा शारीरिक That you will be healthy, ताकि आप हेल्दी हो सके, you will be wealthy,
wealthy, और हमेशा आप धनवान बन सके, and you will be peaceful, और हमेशा शांति जीवन you जिए, will be joyful. हमेशा आनंदित बने। Now that is my prayer for और you वही- every day. और वही मेरी प्रार्थना है हर दिन आपके लिए। When I wake up in the morning, जब मैं सुबह को उठता हूँ, I pray for you. अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना And करता a हूँ, lot of people I know you by your name. और मैं बहुत से लोगों को नाम से प्रार्थना करता हूँ, And I know you by your name, so I pray for you by और name. मैं नाम से आप सबको जानता हूँ, तो मैं नाम से प्रार्थना करता There हूँ। are some of you, I may not know your name, शायद मैं बहुत से लोगों को नाम से नहीं मालूम, but I have your picture in my mind. लेकिन आपके पिक्चर मेरी माइंड में है, And I tell the Lord, Lord, this person. और मैं परमेश्वर से कहता हूँ, प्रभु यही व्यक्ति। But I pray for each one of you every day. लेकिन मैं हर लोगों के लिए यहाँ पे मैं प्रार्थना करता हूँ। And you know what I pray for? और मुझे क्या आपको पता है कि मैं क्या प्रार्थना करता हूँ? Lord, I pray that you will bless them to sow only in the Spirit. और मैं प्रार्थना ये करता हूँ कि प्रभु ये आप सभी को आशीष करे, ताकि उन लोग आत्मा में ताकि बोए, So they can only reap in the Spirit. ताकि उन लोग केवल आत्मा में ताकि उन लोग काट सके। Lord, I pray that they will reap much more blessings. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग ताकि और भी ज्यादा आशीष प्राप्त करें, That they will have great health, oh God. और उन लोग की बहुत ही अच्छा हेल्थ हो सके, They will always be peaceful and joyful. ताकि उन लोग के जीवन में बहुत ही शांति और आनंद हो। Destroy every evil things in their life. हर चीजों को आप नष्ट करिए, Oh Lord, every hindrances, remove that, oh जो God. कुछ भी बाधाएं उन सब चीजों को, And every works of the devil, destroy it, oh शैतान के God. हर एक कार्य को नष्ट कीजिए, And may great doors of blessings be open to और their आशीष के life. द्वार ताकि उन लोगों के जीवन में खुल सके। And that is what I pray. और वही मैं प्रार्थना करता हूँ। But my prayer will not work if you don't sow. लेकिन अगर मेरी प्रार्थना कार्य नहीं करे, अगर आप नहीं बोएंगे, So today onwards, तो आज के बाद we will only sow in blessings. हम केवल आशीष में हम बोएंगे, We will only sow in Christ. हम केवल मसीह में बोएंगे। If you have not trusted Jesus अगर Christ, आपने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, why don't you come to Jesus and trust in Him today? क्यों आप यीशु मसीह के पास आकर विश्वास नहीं करते हैं? You आज cannot go to heaven by your good works. आपके अच्छे कर्म के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जा सकते You हैं, cannot go to heaven by your religion. धर्म के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। Jesus has come to make a relationship with you. यीशु मसीह संसार में आता कि हमारे साथ संबंध बना सके, And He says, if you will receive me, you will be my child, I will be your father. और यीशु कहता है अगर तुम मुझे ग्रहण करोगे, तुम मेरे संतान बनेगे, मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। Nobody can forgive your sin but Jesus कोई Christ. भी आपके पापों को क्षमा नहीं दे सकता, लेकिन केवल यीशु मसीह। And I don't want anyone come to church today, die and go to hell ever. और मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी यहाँ पे जो कलीसिया में आते हैं कि नर्क में ताकि उन लोग जाए। My prayer is that everyone over here will be saved. मेरी प्रार्थना ये कि यहाँ पे जो कोई भी है ताकि उद्धार प्राप्त करे, And all those who are saved, you need to pray for your family to be saved. और जो कोई उद्धार पा चुके हैं उन लोग परिवार के लिए प्रार्थना करना है, And you need to cry to God day and night for their परमेश्वर से salvation. रोना है उन लोग के उद्धार के लिए, And invite them to the church और उन लोगों nicely. को कलीसिया में उन लोगों को बुलाए, And you set a good example to them. और उन लोगों के लिए एक उदाहरण आप सेट करिए, Because you might be the only Bible that they might be reading. शायद आप केवल एक ही उस प्रकार का बाइबल है जो उन लोग रीड कर रहे हैं। They may not read the Bible, शायद उन लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, but they are watching you. लेकिन उन लोग तुम्हें देख रहे हैं। So you could be the only Bible for them. शायद उन लोग के लिए एक बाइबल बन सकते So हैं, you be the good Bible to them. और आप उन लोग के लिए एक अच्छा बाइबल बनिए। As much as you invite them and speak to them about Christ, जितना आप उन लोग से बात करते हैं यीशु मसीह के बारे में, वो कलीसिया में बुलाते हैं, may you and I live as a Bible for them. कि हमें उन लोग के लिए एक बाइबल जैसा हमें जीना है। May you only reap blessings from Christ. कि मेरी प्रार्थना ये कि आप केवल यीशु मसीह आशीष ही प्राप्त करें। Hallelujah. हालेलुया। Let us give a round of applause to glorify the Lord परमेश्वर Jesus. को महिमा देंगे। Give Him the glory. Let us pray. आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं।